साथीगण, आज जैसे आपके समक्ष हम लोग आए हैं और हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित के साथ आज प्रेस क्लब में आए हैं। जैसा कि बहुत ही आँख को खोल देने वाला जो मुद्दा अरुणाचल में थोड़ी दिन पहले सबको पता है, जैसे ईडी बड़े पैमाने से अरुणाचल प्रदेश में अपना डंडोरा पीट रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज एडीपी पार्टी, हमारा माननीय प्रेसिडेंट तामी पांगु साहब के अगुवाई में हम लोग आज यहाँ आए हैं। उनके निकट में हमारा महासचिव किपा नातुंग साहब एडीपी पार्टी के और मैं प्रवक्ता जॉनी यांगफो, आज जैसे कि अरुणाचल में ईडी पहली दफ़ा बहुत ही बड़े पैमाने में सबको आँख खोलने वाले जो रेड हो रही हैं, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आवाज़ यहाँ बुलंद करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारा माननीय प्रेसिडेंट तामी पांगु सर, जो आगे का बात को वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखें। बहुत बहुत स्वागत सर। Thank you. Good noon to all. As our spokesperson has already told you regarding ED raids conducted at various locations at Arunachal Pradesh. We, the Arunachal Democratic Party, is here at APC to brief regarding Enforcement Directorate's recent raid conducted at various locations of Shri Neeraj Sharma, such as ICR, Namsai, TPM Bodumsa, in connection with United Brothers Distilleries Private Limited liquor businesses, Shri Sanjay Dhawan at his Nepa breweries, Shri Rajan Lohaiya at Dibrugarh in connection with liquor bond in Naharlagun, and Shri Rajesh Agarwal at Bandodua and Naharlagun in connection with brewery that produces Royal Style and Blue Whiskies for their alleged tax evasion. It is disheartening to see that the group of businessmen from our neighboring state is using Arunachal Pradesh as their safe haven for accumulation of black money by evading various forms of taxes for the last many years by taking advantages of lack of effective law enforcement authority in the state. Apart from these liquor businesses, there are as many as 11 number of factories run by Shri Neeraj Sharma and his associates, namely MS Platinum Alloys Private Limited at TP, Balukpung in West Kameng, MS Shri Salasar Industries and SMS Smelter Limited at Lekki, MS Satyam Ispat Northeast Limited, MS Satyam Ispat, MS Satyanarayan Steel Private Limited, MS Satyam Steel and Alloys, MS Satyanarayan Ispat, MS Satyam Steel and Alloys, Satyam Coke, MS Sunshine Industries at Bandodua Industrial Estates, and Karsang Industries Private Limited, Karsang in Changlang District, run by Shri Neeraj Sharma and his associates, such as Shri Purushottam Murarka, Shri Ratan Sharma, Shri Jaiprakash Jaiswal, Shri Sandeep Kumar Bhagat, Shri Vijay Vyas, Shri Harsh Sharma, Mrs. Rama Sharma, Shri Naresh Chandra Kyar, Shri Hari Sharma, Shri Suraj Sharma, etc. within the state of Arunachal Pradesh
for the last many years. In addition to this, there are many LAMC, coke and bridge factories established in Changlang district, and most of them are also run by the businessmen from neighboring state. That after the disclosure of their alleged tax evasion in connection with liquor businesses, a serious question of payment of taxes arises in the other factories directly run by them or their associates, and whether they are running the factories as per laid down rules. A concern is being raised on the legality of these factories also, environmental damages being done by these factories, whether the required NOC have been obtained from the concerned department or not. Interestingly, to run above-mentioned factories, there is a need of coal and quartzite stones as primary raw materials. But in our state, extraction of coal has been banned since 2012-13, and there is no record of purchase or demand of quartzite stones by the said factories. Big question which arises here is that where does the raw materials for running these factories come from? They are running these factories under the nose of government regulatory agencies in collusion with some of the politicians and influences people of the state, ignoring the potential environmental consequences and other polluted related issues raised by the general public, thus amassing huge amount of money by fraudulent means, taking advantages of various loopholes in the system and the subsidies which are meant for encouraging the establishment of industries and factories which can benefit the residents of the state, which can ultimately boost the economy of the state. But in this particular case, all the proceeds and benefits are being enjoyed by these outsiders. We left with polluted environment only. In this regard, we the ADP had already submitted representation to the government to conduct an inquiry into this business run by them, but no action has been initiated till that. The Arunachal Democratic Party has an objective to protect the rights and privileges of the indigenous people of the state, as well as its natural resources, which includes mineral and forest resources, and we are committed to do so. Now, therefore, we urge the state government to recommend the central agencies like CBI, ED and Income Tax to inquire into corrupt practices with all the members associated with mentioned factories. तो हिंदी में बोल दो थोड़ा सा ब्रेवली, हाँ। इसमें 4 तारीख को ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नीरज शर्मा, संजय दावन, राजन लोहिया और राजेश अग्रवाल के खिलाफ अरुणाचल में लिक्विड बिजनेस का रिगार्डिंग रेड मारा है। तो वो आपका टैक्स इवेजन में टैक्स नहीं दे रहा है बोल के, तो इसमें ये 4 लोग असम से है, ये लोग अरुणाचल में हर जगह लिक्विड बिजनेस फैलाया हुआ है। तो लिक्विड बिजनेस का अलावा ये लोग अरुणाचल में बहुत सा सारा 11 नंबर्स ऑफ फैक्ट्रीज अरुणाचल का अंदर इस्टेब्लिश्ड है, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीरज शर्मा का रोल है। तो उसमें नीरज शर्मा का पूरा फैमिली है, साथ में इसमें नाम भी हम आप लोग को दिया है प्रेस रिलीज के लिए कि इसमें किस किस का नाम है। तो इसमें अब फैक्ट्रीज तो अरुणाचल का अंदर चला रहा है, लेकिन कौन सा नॉर्म्स फॉलो कर रहा है ये डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज भी हम लोग को डिटेल नहीं दिखा पा रहा है। और यहाँ में आप फैक्ट्रीज रन करने के लिए आपको प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जो है कोयला
एंड क्वार्जाइट स्टोन का ज़रूरत है। तो अरुणाचल में सिंस 2012 एंड 13 कोयला एक्सट्रैक्शन बंद करके रखा है। एंड देन आपका क्वार्जाइट स्टोन अरुणाचल में है, लेकिन जहाँ जहाँ क्वेरीज है वहाँ गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में ये इंडस्ट्री फैक्ट्रीज का सप्लाई रिकॉर्ड में नहीं है। तो यहाँ में फैक्ट्रीज कॉन्टिन्यूसली रनिंग हो रहा है, तो उसका रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है, ये हमारा सवाल है। एंड देन अब लिक्विड बिजनेस का में टैक्स इवेजन का क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो हम लोग का एडीपी का मानना ये है कि ये जो फैक्ट्रीज 11 नौ सब फैक्ट्रीज चला रहा है, इसका भी कोई हिसाब किताब किसी का पास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अरुणाचल का यहाँ का बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लोग का साथ में मिलके, इन्फ्लुएंस आदमी का साथ में मिलके अरुणाचल का भी टैक्स चोरी हो रहा है, प्लस ये काउंट्री का टैक्स चोरी कर रहे हैं। ये हमारा मानना है अभी का ईडी रेट्स को देख के। तो इसलिए हम इसका रिगार्डिंग डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्री में कंप्लेंट भी ऑलरेडी दे चुका है कि इसका ये जो फैक्ट्री से इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाना है और इसका लाइसेंस कैंसिल करो बोल के, लेकिन आज तक उसका क्वेश्चन नहीं है। तो हम एडीपी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है स्टेट का इंटरेस्ट और यहाँ का इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को प्रोटेक्ट करना है, तो ये हम करके रहेंगे। तो इसलिए हम अभी सरकार से ये निवेदन है, एडीपी का तरफ से ये निवेदन है कि सेंट्रल एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये जो 11 नौ सब फैक्ट्रीज है और यहाँ में जो जो लोग डायरेक्टोरेट में है, जो इसमें जो आदमी इन्वॉल्व है, उसका पूरा सभी का खिलाफ इंक्वायरी लगाने देना है। ये हमारा मांग है। थैंक यू। डायरेक्टर को मतलब कंप्लेंट कब लॉन्च किया था? पार्टिकुलरली ये जो 11 नोट का एजेंसी क्या था ना, मास से कमेंट किया था, किस बेसिस पे आप? ये 11 नोस का खिलाफ, इसमें अरुणाचल का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का हिसाब से आप देखिए इंडस्ट्रियल स्टेट हर जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट में हम बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आई हैव टू प्रोड्यूस STPRC। बांदरदुआ का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें पूरा का पूरा नॉन ट्राइबल है। नॉन ट्राइबल ये जो शर्मा फैमिली को अलॉट करके बिजनेस रन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन किया था कि कितना तक ये इसका लेजिटिमेसी होगा। तो इसको तुरंत आपका कैंसिल, इसका जो लाइसेंस है उसको रद्द करना है बोल के हमारा मांग था। आपको मेरे कोलीग ने पूछा कि आप जैसे अभी थोड़ा पहले बता रहा था, आपने कंप्लेन दिया है, कितना तारीख को आपने कंप्लेन दिया और किसको कंप्लेन दिया था? डायरेक्टर। ये 11 फैक्ट्री का एजेंसी में दिया था ना, आप ऐसे 11 नहीं, इसमें देखो हम लोग जो कंप्लेन दिया है उसमें 13 नोस ऑफ फैक्ट्रीज है। तो चांगलांग में भी है, चांगलांग में 12 नोस है। तो हम लोग ये मांग किया था कि जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज जब अरुणाचल में चला रहा है तो उसमें उसका डायरेक्टर्स जो होता है, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, जो यहाँ का एक ट्राइबल आदमी होना बहुत ज़रूरी है एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। तो इसमें जहाँ तक हम लोग देखा है, हम लोग को कागज जो फर्निश किया, एक भी ट्राइबल आदमी नहीं है, मैनेजरल पोस्ट में है। तो उसका मतलब दिस इज टोटली इन वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। तो उसमें उन लोग का रिप्लाई ये था कि ये बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 ये लोग का रजिस्टर करके रखा है। तो उसमें उन लोग का रेस्पॉन्स ये है, इसलिए हम अभी कैंसिल नहीं कर सकते।